Hello dear children, welcome to today's class. Now in today's class, we'll be discussing one problem related to bank reconciliation statement. The problem has been taken from the book T.S. Garibald 2020 edition. It's question number 8 and we have to prepare bank reconciliation statement as on 31st of March 2019 from the following. First transaction. On 31st of March 2019, cash book of a firm showed bank balance of rupees 36,000 debit balance. Now this debit balance means that it's a positive balance. So we are going to write this figure in the plus column. Second adjustment, checks has been issued for rupees 30,000, out of which checks of rupees 24,000 were presented for payment. That means rest of the 6,000 worth of check is not presented for payment. यानी कि 30,000 से आपकी कैश बुक डिक्रीज हो चुकी है, लेकिन पासबुक सिर्फ 24,000 से ही डिक्रीज हुई है. The third transaction, checks of rupees 8,400 were issued in the bank, were deposited, it is deposited in the bank on 28th of March 2019, but had not been credited by the bank. Also, a check of rupees 3,000 entered in cash book on 30th March 2019 was banked on 3rd April. Now was banked on 3rd April means that it was deposited in the bank on 3rd April. The next transaction, a check from Suresh for rupees 2,400 was deposited in the bank on 26th of March 2019 and was dishonored, and advice was received on 2nd April. That means the business or the enterprise got to know about this dishonor on 2nd of April. Passbook showed bank charges of rupees 120 and it was debited by the bank. That means the passbook balance has been reduced by rupees 120. And the last transaction is one of the debtors deposited rupees 3,000 in the bank account of the firm on 26th March 2019, but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd April. Now this is the question. Now let us see that how are we going to prepare the bank reconciliation statement to reconcile the balance of bank as per cash book with the passbook. Now this is the format of a bank reconciliation statement. First column is serial number, second column particulars, third column plus the amount which is to be added to reconcile the balance between the two books, and last column is minus. That is, here we are going to record the amount which needs to be subtracted in order to reconcile the balance of the two books. Now the first item of this question was that debit balance as per cash book, debit balance of the bank, fine, debit balance of the bank as per debit balance as per cash book is given. So debit balance as per cash book means a positive balance, and we are going to record 36,000 in the plus column. Fine. Next transaction was checks had been issued. Now when we issue check, let us see, then cash book balance, जब हम cash book चेक इशू करते हैं तो चेक इशू करने से कैश बुक बैलेंस डिक्रीज हो जाता है. फाइन, दैट मींस वी हैव मेड द पेमेंट. सो कैश बुक का बैलेंस 30,000 से डिक्रीज हो गया है, आउट ऑफ विच 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और पासबुक का जो बैलेंस है वो सिर्फ 24,000 से रिड्यूस हुआ है. सो पासबुक बैलेंस got reduced by just rupees 24,000. So what I need to do is, in order to reconcile the statement, in order to reconcile the balance of the two books, cash book का balance 30,000 से reduce हुआ है, पासबुक का balance 24,000 से हुआ है, तो मुझे cash book के balance को increase कर देना चाहिए by the difference of the amount, that is 6,000. So I'm going to add
write 6,000 in the plus column, and in particulars we'll write checks issued, checks issued, checks issued but not presented, है ना. 6,000 के चेक्स प्रेजेंट नहीं हुए थे, 24,000 के चेक्स प्रेजेंट हो चुके थे, तो पासबुक भी उतने अमाउंट से रिड्यूस हो चुकी थी. नेक्स्ट थर्ड इज checks of rupees 8,400 was deposited in the bank. So 8,400 से अगर हमने चेक डिपॉजिट करा दिए थे तो हमारी कैश बुक का बैलेंस 8,400 से इंक्रीज हो गया था, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक. ठीक है, लेकिन पासबुक में 8,400 रिकॉर्ड नहीं हुए, यानी कि कैश बुक का बैलेंस 8,400 से इंक्रीज हुआ है. एंड ऑल्सो अ चेक ऑफ रुपीज 3,000 एंटर्ड इन कैश बुक, और 3,000 का भी एक चेक हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, यानी कि कैश बुक इंक्रीज कर दी, बट was banked on 3rd of April, यानी कि हम we are preparing bank reconciliation statement बेटा on 31st of March, on 31st of March 2019. So this check of rupees 3,000 was deposited into the bank in the month of April. That means मार्च के मंथ में तो ये 3,000 पासबुक में नहीं आए. So that means कैश बुक का बैलेंस हमारा, अगर हम इसको टोटल अप करते हैं, कैश बुक का बैलेंस हमारा 11,400 से इंक्रीज हुआ है. फाइन, तो हम क्या करेंगे, 11,400 से कैश बुक के बैलेंस को रिड्यूस कर देंगे. सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट 11,400 इन द माइनस कॉलम. सो वी राइट checks deposited but not credited in bank, but not credited in bank. Fine. Next is fourth transaction. A check from Suresh for rupees 2,400 was deposited in the bank on 26th of March. एक चेक था, सुरेश से रिसीव किया हुआ था 2,400 का, and we have deposited this check in the bank. So cash book का bank column is increased by rupees 2,400. It was dishonored and we got to, it was dishonored again means कि हमारी पासबुक increase नहीं हुई है, and we advice was received on 2nd April. We got to know about this on 2nd April. That means our cash book balance was increased by 2,400. So again, in order to reconcile the balance of the bank as per cash book and passbook, your cash book balance should be reduced by 2,400. So we are going to write this amount 2,400 in the minus column, and in particulars we'll write check deposited being dishonored. Now the next transaction, fifth transaction, it says passbook showed bank charges 120 debited by the bank. That means passbook का balance बेटा reduce हो गया है. अगर passbook के बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं तो यानी कि पासबुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया है 120 से. फाइन, हमें कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ, तो रिकंसाइल करने के लिए हम कैश बुक के बैलेंस को भी 120 से रिड्यूस कर लेंगे. एंड इन पर्टिकुलर्स वी आर गोइंग टू राइट बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय bank. Now the last transaction, it says one of the debtor deposited 3,000 in the bank account of the firm on 26th March, but the intimation of this respect was received from the bank on 2nd April. That means one of the debtor directly deposited into the bank, so passbook got increased by the amount of 3,000. अब passbook का balance increased है बेटा,
कैश बुक का बैलेंस नहीं है, तो कैश बुक के बैलेंस को अगर मैं 3000 इसके अंदर ऐड कर दूं, प्लस कॉलम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूं, तो मेरा पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस के बराबर मैच कर जाएगा. सो आई एम गोइंग टू राइट इट इज एज amount deposited by debtor directly into the bank. Fine. Now directly into the bank. Now you can see, let's total up both the sides. Now when we total up both the sides, plus कॉलम का बेटा टोटल आ गया आपका 36,000 plus 339, 39 plus 6 is 45,000. Fine. And your minus side total is, it is the total of this minus side is, let's write it over here, it's 13,920. Fine. So if you are going to subtract 13,920 from 45,000, fine, then the balance is 31,080, and this we are going to write over here 31,080. So this is 45,000 total, and we are going to record this amount as, this is the balance, this will be the balance, credit balance as per passbook. Credit balance as per passbook. Fine. And this is the correct answer. I hope that the solution of this question is clear to all of you. Now let's discuss few more transactions जिनके बेसिस पर हमारे कैश बुक के बैंक बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है. One such transaction is a bill of rupees 5,500 discounted with bank is entered in cash book without recording the discount charges of rupees 270. देखिए बेटा, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब है कि आपने बैंक से उस बिल को एनकैश करा लिया. ठीक है, जब हम बिल को एनकैश कराते हैं तो क्या सिचुएशन हुई है इस केस में कि हमने बिल था 5,500 का. ठीक है, हम बिल को बैंक के पास लेके गए और बोला कि इसको एनकैश कर दीजिए. ठीक है, तो बैंक क्या करता है, ऑब्वियसली बैंक इज गिविंग यू द सर्विसेज, इज डिस्काउंटिंग योर बिल. तो बैंक क्या करता है, अपने 270 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करके, फाइन, अपने बैंक विल चार्ज 270 rupees as the discounting charges and will pay the rest of the amount or deposit the rest of the amount in the bank account of the customer. Fine. तो बैंक ने क्या किया, 5,000, if we subtract 270 from 5,500, बैंक ने 5,230 rupees, फाइन, 230 rupees पासबुक में डिपॉजिट कर दिए. सो मेरा पासबुक इंक्रीज हुआ, पासबुक इज इंक्रीज्ड by this amount 5,230. Fine. Now we have recorded, see in this transaction, a bill of rupees 5,500 discounted is entered in cash book. हमने कैश बुक को क्या किया, कैश बुक के अंदर एंटर करा विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस. यानी कि कैश बुक के बैलेंस में, कैश बुक में हमने अमाउंट डिपॉजिट 5,500 ही दिखाया, तो कैश बुक का बैलेंस 5,500 से इंक्रीज हो गया.
सो हेयर लाइज द डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस आ गया। कैश बुक का बैलेंस 5500 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पासबुक का बैलेंस तो सिर्फ 5230 से इंक्रीज हुआ है। नाउ लेट अस सी द इफेक्ट ऑन बोथ द बुक्स। नाउ यू कैन सी दैट कैश बुक का बैलेंस, बैंक बैलेंस डेबिट हुआ है 5500 से, लेकिन पासबुक में सिर्फ क्रेडिट 5230 हुए हैं। तो अगर we are preparing bank reconciliation statement when the balance as per cash book is given, fine, then what I need to do is, मैंने कैश बुक का बैलेंस ज्यादा इंक्रीज कर दिया है by 270 रुपीज, तो कैश बुक के बैलेंस में 270 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको माइनस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर मुझे पासबुक के बैलेंस में चेंज लेकर आना है तो पासबुक का बैलेंस 270 रुपीज कम है with compared to कैश बुक बैलेंस। सो अगर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैलेंस एज पर पासबुक के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ तो 270 रुपीज मैं ऐड कर दूंगी पासबुक के बैलेंस में, एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट इन दी प्लस कॉलम। The next transaction, because of which the difference can arise between the bank column as per cash book balance and your passbook. It is a debtor paid 1000 into the company's bank in settlement of his account, but no entry was made in the cash book of company in respect of this. यानी कि एक डेटर ने कंपनी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिट करा दी और कंपनी के कैशियर को अभी कोई इंटीमेशन नहीं मिली है। Then let's see the effect of this transaction. See, your passbook balance will get increase, है ना, because there is a deposit of rupees 1000 directly into the bank account, तो पासबुक का बैलेंस 1000 से इंक्रीज हो जाएगा, फाइन। लेकिन कैश बुक में ये डिपॉजिट शो नहीं हो रहा, डेबिट साइड पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस 1000 अमाउंट से कम शो हो रहा होगा। तो अगर मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती हूँ विद बैलेंस एज पर कैश बुक, फाइन, तो मुझे कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए पासबुक के लिए 1000 को ऐड करके दिखाना होगा, एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट 1000 in the plus column, fine. Whereas if I am preparing bank reconciliation statement with balance as per passbook, fine, तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज है तो मुझे पासबुक के बैलेंस को 1000 से डिक्रीज दिखाना होगा, डिक्रीज करके दिखाना होगा, एंड आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस 1000 इन दी माइनस कॉलम इन दी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। I hope that this transaction is clear to everyone. Now the next transaction is no entry has been made in cash book to record the dishonor on 15th of March 2015 of a check of for rupees 550 received from Ram Babu. That means एक चेक था, हम डिपॉजिट कर चुके थे, वो डिसऑनर हो गया on 15th of March 2015. Fine, but no entry has been made in the cash book to record this dishonor of a check for rupees 550. Now let's see the effect of this transaction on both the books. बेटा जब चेक डिसऑनर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पासबुक में अमाउंट 550 की नहीं आई मीन्स मेरा पासबुक का बैलेंस 550 से कम शो कर रहा है। दैट मीन्स 550 से पासबुक का जो बैलेंस है दैट इज लेस देन द बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। रीजन भी कि कैश बुक के अंदर हमने ये डिसऑनर को रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि कैश बुक का बैलेंस 550 से ज्यादा बैलेंस शो कर रहा होगा इफ वी कंपेयर इट विद द पासबुक बैलेंस। सो अगेन I need to prepare the bank reconciliation statement. When bank reconciliation statement is prepared, when balance as per cash book is given, cash book का बैलेंस 550 रुपीज से ज्यादा है तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे,
इसको माइनस कॉलम में शो करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। लेकिन अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, तो पासबुक का बैलेंस कम था एज कंपेयर टू कैश बुक बैलेंस बाय द अमाउंट 550, तो हम 550 को ऐड कर देंगे पासबुक के बैलेंस में और इस अमाउंट को प्लस कॉलम में शो करेंगे। Now the next transaction is that bank paid insurance premium of rupees 5,000. बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी, बैंक ने एंटरप्राइज के बिहाफ पे 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, लेकिन वो इंश्योरेंस प्रीमियम कैश बुक में एज पेड 500 रिकॉर्ड हुआ. सो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज दैट योर पासबुक is going to reduce by rupees 5,000. अब देखिए 5,000 विड्रॉल कॉलम से डिक्रीज हो गया है 5,000 से आपका कैश पासबुक का बैलेंस, लेकिन कैश बुक सिर्फ 500 रुपीज से क्रेडिट हुई है. देयर इज एन एरर. सो दैट मीन्स आपके बेटा कैश बुक का बैलेंस अगर पासबुक के बैलेंस से कंपेयर करें तो 4,500 रुपीज 4,500 रुपीज से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा. क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट कम रिकॉर्ड करी है ना. 5,000 की पेमेंट रिकॉर्ड हुई कैश बुक में सिर्फ 500 की, तो यानी कि 4,500 से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है इफ वी कंपेयर इट विद द पासबुक. और पासबुक का बैलेंस भी 4,500 से कम शो कर रहा होगा इफ वी कंपेयर इट विद द कैश बुक बैलेंस. फाइन. So if I am preparing bank reconciliation statement when balance as per cash book is given, so cash book के balance में 4,500 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, क्योंकि ज्यादा शो कर हो रहा था कैश बुक का बैलेंस, तो हम इसको माइनस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. बट व्हेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, सो इस 4,500 को हम पासबुक के बैलेंस में ऐड करेंगे, इसको प्लस कॉलम में शो करेंगे. रीजन के पासबुक का बैलेंस 4,500 से कम अमाउंट शो कर रहा था इफ वी कंपेयर इट विद द कैश बुक बैलेंस. नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 500 वर रिवर्स्ड बाय द बैंक. रिवर्स बाय बैंक का मतलब क्या हुआ कि बेटा बैंक चार्जेस पहले बैंक ने चार्ज किए थे, फाइन, और उसके बाद फिर बैंक ने उनको रिवर्स कर दिया. तो जब बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए होंगे तो बैंक ने अपनी पासबुक में उसको डेबिट किया होगा. जब रिवर्स कर दिया यानी कि वो 500 की अमाउंट पासबुक में दोबारा डिपॉजिट कर दी. लेकिन ये ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है. कैश बुक के का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है. देखिए जब बैंक चार्जेस रिवर्स हो गए, बैंक चार्जेस जब भी बैंक चार्ज करता है तो आपकी पासबुक को डेबिट कर देता है. रिवर्स कर दिया यानी कि वो 500 रुपीज जो बैंक चार्जेस किए थे वो दोबारा बैंक ने आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए. लेकिन इसकी इंटीमेशन एंटरप्राइज के पास नहीं थी, तो आपका कैश बुक डेबिट नहीं हुई, इंक्रीज नहीं हुई. तो इससे क्या इफेक्ट होगा कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस होगा वो 500 रुपीज से बैलेंस को कम शो कर रहा होगा. फाइन. लेकिन पासबुक का बैलेंस क्योंकि डिपॉजिट हो गया है तो पासबुक का बैलेंस 500 रुपीज से ज्यादा शो कर रहा है अगर हम दोनों बैलेंसेस को कंपेयर करें कैश बुक और पासबुक के. सो इफ वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस 500 कम शो कर रहा है. इसको रिकंसाइल करने के लिए 500 को कैश बुक के बैलेंस में ऐड कर देते हैं और इस अमाउंट को प्लस कॉलम में शो करेंगे. अगर वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक जो कि 500 से ज्यादा शो कर रहा है बैलेंस, तो हम पासबुक के बैलेंस में 500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इस अमाउंट को हम माइनस कॉलम में शो करेंगे. Now let's discuss the last transaction for the day. The transaction is the checks paid into bank rupees 8,000, but out of these only checks of rupees 6,500 were credited by the bankers. Now what is the effect of this transaction on both the books? Checks paid into bank, that means the debit side of the
कैश बुक बैंक कॉलम गेट्स इंक्रीज्ड, 8000 से इंक्रीज हो गई है, फाइन। लेकिन 8000 में से सिर्फ 6500 के चेक्स ही बैंक ने क्रेडिट किए हैं, यानी कि बैंक की पासबुक सिर्फ 6500 से इंक्रीज हुई है। नाउ द डिफरेंस between these two amount is 1500, so that means this transaction is going to result into increase in the bank balance shown as per cash book by the amount 1500, fine। और लेकिन अगर पासबुक से देखेंगे तो पासबुक में 1500 पासबुक का जो बैलेंस आएगा वो 1500 से कम आएगा अगर मैं पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के साथ कंपेयर करूंगा, fine। So in order to reconcile this statement, now what needs to be done, कैश बुक के अगर वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस 1500 से इंक्रीज हुआ है, तो हम 1500 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैश बुक के बैलेंस में एंड वील शो दिस अमाउंट इन द माइनस कॉलम। और अगर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे हैं तो हम पासबुक के बैलेंस को, क्योंकि वो 1500 से लेस था, पासबुक के बैलेंस में 1500 ऐड कर देंगे एंड वील शो दिस अमाउंट इन द प्लस कॉलम। I hope that all the transactions which we have discussed today is clear to all of you. Hope all of you have enjoyed the learning today. That's all for today from my side. Thank you very much.